Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusa Iram. And let's have a look on the lecture number 3, which is completely regarding the screw gauge. स्टूडेंट सबसे पहले ये देखते हैं कि स्क्रू गॉज है क्या। अगर हम वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा प्रिसाइज्ड मेजरिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रू गॉज को यूज़ किया जाता है। यूजुअली स्क्रू गॉज 5 टाइम्स विद ग्रेटर प्रिसीजन रीडिंग देता है एज कंपैरिजन टू द वर्नियर कैलिपर। स्क्रू गॉज से स्टूडेंट्स हम डायामीटर, लेंथ और थिकनेस ऑफ सॉलिड बॉडीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। स्क्रू गॉज को माइक्रोमीटर भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आपको डायग्राम स्क्रीन पे शो हो रही है जिसमें आपको नज़र आ रहा है यू शेप्ड फ्रेम है जिसके अंदर एक स्टड है और एक स्क्रू है। स्टड जो है वो लेफ्ट साइड पे होता है, दैट इज़ फिक्स्ड, एंड एट द राइट साइड देयर इज स्क्रू विच इज़ मूवेबल. Like the vernier caliper, it also has two scales. One is called a pitch scale and the other is called a circular scale. The pitch scale is also called the sleeve scale and the circular scale is also called the thimble scale. स्टूडेंट्स, लास्ट पे आपको रैचेट नज़र आ रहा है। रैचेट से या थिम्बल से, इन दोनों से हम लोग यूजुअली टाइट करते हैं या ये दोनों हमें रोटेटरी या लीनियर मोशन करने में हेल्प आउट करते हैं। जो बातें मैंने आपको डायग्राम में बताई हैं वही हम इसकी कंस्ट्रक्शन में देखेंगे कि इसकी कंस्ट्रक्शन है क्या। अ सिंपल screw gauge consists of a U-shaped metal frame with a metal stud at one end. A hollow cylinder has a millimeter scale over it along a line which is called the index line. Students, जो मेन स्केल की लाइन है जो मिड में लाई कर रही है उसे इंडेक्स लाइन कहा जाता है। द सिलेंडर एक्ट एज अ नट, जो हॉलो सिलेंडर है वो एक नट की तरह काम करता है। इट इज़ फिक्स्ड एट द एंड ऑफ अ यू शेप्ड फ्रेम opposite to the stud. As a thimble completes one rotation, the spindle moves 1 millimeter along the index line. It is because the distance between the two consecutive threads on the spindle is 1 millimeter. This is also called the pitch of the screw on the spindle. स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हमने देखा था वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट थी, सेम ये मोर प्रिसाइज है तो इसकी लीस्ट काउंट क्या होगी हम वो देखेंगे। इट्स लीस्ट काउंट इज कैलकुलेटेड by dividing the pitch of micrometer with the total number of divisions on the circular scale. पिच जो है वो 1 है, इसको हम जो सर्कुलर स्केल की टोटल 100 डिवीजन्स हैं इसके साथ डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं कि ये वर्क किस तरह करता है। Like vernier caliper, firstly we have to determine either there is a zero error or not. Then the question arises, what is the zero error? If the zeros of the circular scale coincide with the index line, then the zero error is 0. And if both the scales are not coinciding, it means there is some error, and this error can either be the positive zero error or negative zero error. Zero error will be positive if the zero of the circular scale is behind the index line, and the zero error will be negative if the zero of circular scale has crossed the index line. स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन के ऊपर ये 3 फिगर्स शो हो रही हैं। इन द फिगर ए देयर इज़ नो ज़ीरो एरर एज द मेन स्केल ज़ीरो इज़ exactly matching with the circular scale 0,
बट इन द फिगर बी यू सी कि जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो से पीछे है। तो ये जो ज़ीरो होगा डैट विल बी द पॉजिटिव ज़ीरो एरर। और अगर ज़ीरो सर्कुलर स्केल का अबव द इंडेक्स लाइन होगा देन द ज़ीरो एरर विल बी नेगेटिव। अब स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि हम स्क्रू गॉज से रीडिंग किस तरह से ले सकते हैं। इसके स्टेप्स हैं, आपने इनको अच्छे से मेमोराइज कर लेना है और ये बहुत इजी है रीडिंग लेना। Close the gap between the spindle and the stud of the screw by turning the ratchet in the clockwise direction. Note the main scale as well as the circular scale reading to find the zero error and hence the zero correction of the screw gauge. Open the gap between the stud and spindle of the screw gauge by turning the ratchet in anti-clockwise direction. Place the wire in the gap. Turn the ratchet so that the object is pressed gently between the studs and the spindle. Note the main as well as circular scale reading to find the diameter of the given figure. Repeat the above steps at different places of wire to obtain the average diameter. स्टूडेंट्स, तो इन स्टेप्स को पढ़ने के बाद आपने इन बातों का ख़ास ख्याल रखना है कि जो मेनली रीडिंग है ना वो आपने मेन स्केल रीडिंग लेनी है और एक सर्कुलर स्केल रीडिंग लेनी है। वो सर्कुलर स्केल रीडिंग जो मेन स्केल के साथ एग्जैक्टली मैच कर रही है उसको लेंगे और सर्कुलर स्केल वाली रीडिंग को लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा और बाद में मेन स्केल और सर्कुलर स्केल की रीडिंग को जस्ट ऐड कर लेना है। देन यू कैन easily find out any calculation regarding the screw gauge. स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस के लिए कि आप रीडिंग किस तरह से ले सकते हैं स्क्रू गॉज के लिए आपको स्क्रीन पे 3 फिगर्स नज़र आ रही हैं। तो आप इसकी जो फिगर 2.10 है इसको देखें। इसमें जो मेन स्केल या जिसे स्लीव स्केल भी कहा जाता है यहाँ पे 6 रीडिंग शो हो रही है। तो स्लीव स्केल रीडिंग और मेन स्केल रीडिंग को जो है वो 6 मिलीमीटर है और जो थिम्बल स्केल या सर्कुलर स्केल रीडिंग है दैट इज 68 which is perfectly matching with the sleeve scale. Then you will have to just multiply 68 with the least count and you get the answer 0.6 add 8 at the last. You will have to just add both the reading, then you will get 6.68 millimeter. स्टूडेंट्स, अब आप इसकी फिगर 2.7 देखें। स्लीव स्केल रीडिंग जो है वो 7 मिलीमीटर है और जो थिम्बल स्केल रीडिंग है दैट इज़ 47 विच इज़ परफेक्टली मैचिंग विद द मेन स्केल रीडिंग। और आपने इस 47 को लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कराना है तो आपका आंसर आएगा 0.47 मिलीमीटर। At the last step, you will have to just simply add both the reading. After adding, you get the final answer which is 7.47 millimeter. इसी तरह स्टूडेंट्स, आपको फिगर 2.8 नज़र आ रही है। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ऊपर 9th लाइन जो है वो मेन स्केल की है या स्लीव स्केल की और जो नीचे वाली एक लाइन नज़र आ रही है डैट 1 लाइन इज इक्वल टू 0.5। 9 प्लस 0.5 आपके पास जो स्लीव स्केल रीडिंग आएगी डैट विल बिकम 9.5 मिलीमीटर और जो थिम्बल स्केल रीडिंग है डैट इज 24 एंड यू हैव टू जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई 24 with the least count and the answer will be 0.24 millimeter. After adding the sleeve scale with the thimble scale, you will get the answer 9.74 millimeter. स्टूडेंट्स, आपकी प्रैक्टिस के लिए एक और क्लियरली एग्जाम्पल स्क्रीन पे शो हो रही है, आप इसको देखें।
इसमें भी सिंपल आपके पास जो मेन स्केल रीडिंग है या स्लीव स्केल डेट इज़ 7। 7 के आगे इंडेक्स लाइन के बिलो जो 1 आपकी लाइन है वो शो करती है 0.5। आप इसको ऐड करेंगे और जो सर्कुलर स्केल रीडिंग विच इज़ कम्प्लीटली coinciding with the main scale is 24. After multiplying the 24 with the least count, you get 0.24. At the last step, you will have to just simply add all of these values so that you can get the answer 7.74 millimeter. Students, thank you so much for listening me. If you like my video, then kindly do subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Arusa Iram, and thank you so much.